Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the alkyl halides reactions. Let's start. In this video, we will cover alkyl halides का chapter or let's start from the classification of alkyl halides. Then we will move towards the reactivity and we'll discuss the reactions as well. और कुछ practice questions को देखते हैं after that. So beta, what are alkyl halides? Although I am using the very general term alkyl halides, जो कि also known as halogenoalkenes. If I will use this term, तो it means कि मैं तमाम तरह के हेलोजन के कंपाउंड्स को डिस्कस करूंगा, हेलोजिनोअल्केन्स, और वी कैन नेम दैट हेलोअल्केन्स. सो बेटा हेलोजिनोअल्केन्स में द फर्स्ट थिंग व्हिच केम इन माय माइंड कि हेलोजिनोअल्केन्स में सबसे पहले अगर क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करें, सो वी हैव मोनो haloalkane, we have dihaloalkanes, and we have trihaloalkanes. बेटा नेम से ही आपको आइडिया हो जाएगा. मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3. तो अगर एक हेलोजन किसी कंपाउंड में मौजूद है, दैट इज नोन एज मोनो हेलोअल्केन. एंड इफ अ कंपाउंड कंसिस्टिंग अपॉन 2 हेलोजन एटम्स, तो बेटा दैट इज कॉल्ड एज डाइहेलोअल्केन. एंड ट्राइहेलोअल्केन मींस द कंपाउंड कंसिस्टिंग अपॉन 3 हेलोजन एटम्स. सो ट्राइहेलोअल्केन होएगा, इसी तरह से टेट्राहेलोअल्केन होएगा. सो बेटा जो जनरल टर्म हम यूज कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड, alkyl halide is only used for monohaloalkanes. For example, if you have CH3Cl, तो बेटा इसको आप कह सकते हो that is alkyl halide. This is alkyl halide as well. That is also known as alkyl halide, और मैं CH3Cl को कह सकता हूं. If we have a compound that is consisting upon 2 halogen atoms like this, that is for example CH3 or that is H. बेटा इस कंपाउंड में we can see 2 halogen atoms, so this is not alkyl halide. इनको कह सकते हैं हम डाइहेलाइड्स. ठीक है, डाइहेलोअल्केन्स जो स्पेसिफिक नेम यूज किया जाता है. ट्राइहेलोअल्केन्स में वी हैव 3 हेलोजन एटम्स. कोई भी 3 हेलोजन्स हो सकते हैं, और जो फोर्थ एटम होएगा इट कुड बी H और इट कुड बी एनी अदर सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल ग्रुप भी यूज कर सकते हो, अल्काइल हैलाइड्स भी. सो यहाँ पे आपके पास हो गया ट्राइहेलोअल्केन बिकॉज वी हैव 3 हेलोजन एटम्स ओवर हियर. सो बेटा अल्काइल हैलाइड्स का पहले तो एक ये टर्म आपको याद रखनी होगी. सो इन दिस वे वी कैन क्लासिफाई दिस थिंग. Another classification we have observed in organic chemistry, बेटा जिनको हम कहते हैं primary alkyl halides, secondary alkyl halides and tertiary alkyl halides. So these are very important things. तो अब उनको एक मर्तबा go through कर लेते हैं. Primary alkyl halides क्या होते हैं? Alkyl halides, or you can name as RX. Secondary alkyl halides क्या होते हैं? And what are tertiary alkyl halides? This AH is alkyl halide general name use किया. ठीक है. So बेटा if we have primary alkyl halide, so it is necessary कि alpha carbon is attached, जो halogen है that is attached with the carbon which can further attach with maximum 1 carbon. दोबारा एक मर्तबा सुने. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होंगे? इन विच halogen is attached with the carbon
which can further attach with maximum 1 carbon. ठीक है, एक हो भी सकता है और एक नहीं भी हो सकता. अगर एक के साथ अटैच है तो इट बिकम CH3 CH2Cl. This is primary alkyl halide. Secondary alkyl halide is a type of alkyl halide in which halogen is attached with the carbon that is further attached with 2 carbon atoms. यानी कि 2 CC bonds आपको नजर आएंगे अल्फा कार्बन के साथ. This becomes अल्फा कार्बन. जो हेलोजन के साथ वाला कार्बन होगा बेटा, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट कार्बन ना, तो हम उसको कहते हैं अल्फा कार्बन. सेकंड कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन. सो अल्फा कार्बन इज अटैच विद 2 कार्बन एटम्स. तो 2 CC बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं. सो इन टर्शरी हेलोजन इज अटैच विद अ कार्बन दैट कैन अटैच विद 3 फर्दर कार्बन्स. ठीक है. So although we have to complete the valency by putting the hydrogens along with the hydrogen atoms, so अगर हम उसको complete करें तो बेटा ये example बन जाएगी आपके पास CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा सकते हो आप. So that is secondary alkyl halide. CH3. This is your tertiary alkyl halide. So बेटा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा कार्बन. कि अल्फा कार्बन कैन अटैच विद मैक्सिमम 1 कार्बन इन प्राइमरी, सेकेंडरी में फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच और टर्शरी में फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो सकता है. ऑलराइट, सो नाउ हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चंस. द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. बेटा अल्काइल हैलाइड्स कह दिया, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट मोनो हैलो अल्केन्स. मोनो हैलो अल्केन्स, नॉट डाई नॉट ट्राई. सो बेटा CnH2nX, बेटा डबल हाइड्रोजन से एक ज्यादा होना चाहिए आपके पास हाइड्रोजन. सो ओवर हियर वी हैव डबल से जितने कार्बन है उसके डबल से एक ज्यादा हाइड्रोजन है इन दिस केस. So this is not the correct option. This is again not the correct option. That is the correct option. यहाँ पे आ गया 2n-1. So that is again the incorrect option. So ये चीज हमने discuss की. This is the general formula of alkyl halides. और अगर मैं ये कहूँ कि what is the general formula of dihaloalkane? So what could be its answer? बेटा दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स कि डाइहैलोअल्केन्स यहां पे अगर रिप्लेस कर दिया जाए जनरल फार्मूला ऑफ डाइहैलोअल्केन इज, सो क्या आंसर उसका होना चाहिए. दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स और उस पर फिर मैं अपना फीडबैक दूंगा इंशाल्लाह. गॉट इट. नाउ हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज रेलेवेंट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. व्हिच वन इज नॉट अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. कौन सा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड नहीं है? इस ऑप्शन को देखते हैं. Br इज अटैच विद द कार्बन दैट इज फर्दर अटैच विद ओनली 1 कार्बन. सो बेटा दिस इज प्राइमरी. यस इट इज प्राइमरी. लेकिन क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. सो यहां पे ऑब्जर्व करते हैं. दिस इज अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन इज अटैच विथ 1 कार्बन. बेटा ये कार्बन तो एक कार्बन के साथ अटैच है ना. ऑल्दो द बीटा कार्बन, दिस वन इज बीटा कार्बन. बीटा कार्बन इज फर्दर अटैच विद द 2 कार्बन एटम्स. सो बेटा बीटा कार्बन का कंसर्न नहीं है हमारे साथ. अगर हमने ऑब्जर्व करना है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स को, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स को देखना है तो यू जस्ट हैव टू फोकस ओवर द फर्स्ट कार्बन. अल्काइल हैलाइड जो पहला कार्बन है बेटा, it is further attached with 1 carbon. Yes, it is attached with only 1 carbon. So that is primary alkyl halide. ये भी primary alkyl halide था. Next को देखते हैं C option. This is the halogen that is attached with the carbon. So it means that is alpha carbon. So alpha carbon is attached with 2 carbons over here. So it means that is secondary.
secondary alkyl halide. It is not a primary alkyl halide. Option B और C both are not correct. और मोस्टली स्टूडेंट इसमें B और C को करेक्ट कर लेते हैं. रीजन क्या होती है? वो कहते हैं अच्छा भाई यहाँ पे भी एक ब्रांच नजर आ रही है, यहाँ पे भी एक ब्रांच है, सो B और C दोनों ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स नहीं है. सो दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट आंसर क्या होएगा? दैट इज ओनली C. ऑलराइट. सो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं मोस्टली. सो होप सो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स तो क्लियर होएगा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. बेटा अगर रिएक्टिविटी की हम बात करते हैं, सो वी हैव टू कॉन्सेप्ट्स. रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स RX. बेटा एक कॉन्सेप्ट है पोलैरिटी का और एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी का. द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड के इसको रिलेट करवाते हैं हम बॉन्ड पोलैरिटी के साथ. एंड वी कैन रिलेट इट विथ बॉन्ड एनर्जी एज वेल. अब अगर हम बॉन्ड पोलैरिटी को देखें बेटा, दैट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन कि जो मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर हैं दैट इज रिएक्टिव. कॉन्सेप्चुअली तो ये बात बिल्कुल ठीक है. एंड वी हैव ऑब्जर्व कि पोलर मॉलिक्यूल्स आर मोस्टली मोर रिएक्टिव. तो रिएक्टिविटी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स वो ज्यादा होगी. और पोलर मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आ जाता है वो मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहां पे ग्रेटर होएगा तो बेटा वहां पे पोलर नेचर ज्यादा होती है. अगर पोलर नेचर ज्यादा है तो इट मींस रिएक्टिव ज्यादा होंगे. अकॉर्डिंग टू दैट थिंग हम कह सकते हैं कि R और F में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बिकॉज फ्लोरीन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम द हैलोजन सीरीज. तो RF का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है जिसकी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए. देन वी हैव RCl, आफ्टर दैट वी हैव RBr एंड एट द एंड वी हैव RI. सो वी हैव वन कॉन्सेप्ट ओवर हियर जो कि आपको एक ऑर्डर ये देता है. और अगर बॉन्ड एनर्जी को देखें तो बॉन्ड एनर्जी टेल्स अस कि बेटा जिनका बॉन्ड वीक है, जिनके दरमियान में बॉन्डिंग जरा वीक होएगी, वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे और वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे. ऑब्वियसली जो लेस स्टेबल है दैट इज मोर रिएक्टिव. तो बेटा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इट कैन मेक अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद द कार्बन. तो यहां पे इन दिस केस जो R में कार्बन है इट कैन मेक अ बॉन्ड विद फ्लोरीन मोर स्ट्रॉन्गर. तो इसका बॉन्ड क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग है. अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इट मींस इट इज लेस रिएक्टिव. तो ये लेस रिएक्टिव होएगा सबसे. देन वी हैव RCl, देन वी हैव RBr एंड देन वी हैव RI. तो बेटा ये तो बिल्कुल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ऑर्डर्स हमें मिल गए. सो व्हेन वी परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स में ये चीज ऑब्जर्व की गई कि बॉन्ड एनर्जी इज एक्चुअली द करेक्ट मेथड टू आइडेंटिफाई द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. सो बेटा हम इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ठीक है. सो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में से विच वन इज मोर रिएक्टिव? RI is more reactive. Done हो गया जी. So now have a look over the question number 3. Which order of reactivity of alkyl halide is correct? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? RI. और यहां पे भी RI है. सो इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकती है. A नहीं ठीक होएगा बिकॉज RF
सबसे ज्यादा रिएक्टिव नहीं है बल्कि सबसे कम रिएक्टिव है, RF सबसे कम रिएक्टिव है. नाउ हैव अ लुक ओवर ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. RI, देन वी विल हैव RBR और फिर RCL और सबसे कम RF आना चाहिए. सो बेटा ये तो ऑर्डर यहां पे चेंज हो गया. इट मस्ट बी ओवर हियर और ये यहां पे होना चाहिए था, तो दैट इज इनकरेक्ट ऑर्डर. सो बी भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गई. RI is more reactive than RCL and RCL is more reactive than RF. तो ये ऑर्डर यहां पे ठीक लग रहा है. So we will select the C answer. C is the correct option. So according to the reactivities concept, beta we can select the C option. Now have a look over this reactions technique के जितने भी halogenoalkanes के reactions होंगे, how can we cover up by using this thing कि we have ethyl chloride over here. बेटा ethyl chloride का अगर रिएक्शन आप करवाते हो जिंक के साथ, so zinc will get that in the presence of HCl obviously, so that will get Cl from this thing and produces zinc chloride and alkane बन जाएंगे. सेम जो कार्बन के होंगे will get the alkane over here. So प्रोडक्ट में आपके पास क्या आ जाएगा? Alkane with the same number of carbons. Same number of carbons in this process. तो बेटा एक्चुअली इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट बना वो क्या है? That is ZnCl2. ZnCl2 बन जाएगा and we'll get the alkane molecules. सेकेंड रिएक्शन में देखते हैं. बेटा we have the reaction with Mg और dry ether यहां पे यूज किया जा रहा है. बेटा in this process we will get Grignard reagent. We have CH3 CH2. तो बेटा ये जो Mg है, Mg has two bonds, it belongs from the group number 2. तो ये दो bonds अपने किस तरह से बनाएगा? From one side it is attached with the carbon and from one side it is attached with the Br. So Mg is a metal. Metals are electropositive elements. तो बेटा मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, दैट्स वाई जो साथ कार्बन है, मैग्नीशियम के साथ जो कार्बन अटैच है, इट हैज टू कन्वर्ट इनटू द पार्शियल नेगेटिव कार्बन, यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन बन जाएगा. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट. Grignard reagent. और ये A levels के स्टूडेंट्स के लिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू डिडंट डिस्कस दिस रिएक्शन इन योर कंटेंट A levels में या AQA में या OCR में. ये रिएक्शन Grignard reagent आपने ऑब्जर्व नहीं किया होता. FSC के कंटेंट में ये टॉपिक इंक्लूड है. सो Grignard reagent क्या होते हैं? जस्ट आपने ये याद रखना है, मैग्नीशियम के दोनों साइड्स पे बेटा वन साइड इज अटैच्ड विद द Br या जो भी Cl है. वी हैव यूज्ड Cl ओवर हियर, तो यहाँ पे Cl होएगा. अगर Br है यहाँ पे आपके पास, तो बेटा यहाँ पे Br अटैच हो जाएगा. इफ यू हैव आयोडीन तो आयोडीन अटैच हो जाएगा. ऑन द अदर साइड वी विल हैव द सेम सीरीज ऑफ द अल्काइल. इफ वी हैव इथाइल तो इथाइल अटैच हो जाएगा, अगर मिथाइल होता तो मिथाइल अटैच हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड Grignard reagent. Grignard reagent बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है. रिमेंबर दिस पॉइंट. एंड द रिएक्टिविटी इज ड्यू टू द पोलैरिटी. ऑल्दो बॉन्ड पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट टू दैट कॉन्सेप्ट, लेकिन इन दोनों में से अगर हमने सेलेक्ट करना था फॉर द अल्काइल हैलाइड्स, एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट ज्यादा नियरेस्ट थे बॉन्ड एनर्जी के. सो दैट्स व्हाई वी सेलेक्टेड द करेक्ट ऑर्डर फॉर द अल्काइल हैलाइड इन दिस वे. लेकिन पोलर नेचर जितने भी मॉलिक्यूल्स की होती है, दे आर मोर रिएक्टिव. सो यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है बाय यूजिंग दिस मैग्नीशियम. मैग्नीशियम की वजह से ये कार्बन नेगेटिव हो गया एंड दैट इज पार्शियल पॉजिटिव. तो बेटा इट बिकम्स अ पोलर मॉलिक्यूल. Grignard reagent क्या है? दैट इज पोलर इन नेचर. तो बेटा अगर पोलर है तो इसका मतलब है इट इज रिएक्टिव. अगर पोलर है तो इट मींस दैट इज रिएक्टिव. व्हाई Grignard reagent is reactive? Due to the carbon and magnesium bond. अगर इसी को आप ओपन करके देखते हो तो कार्बन हैज टू बॉन्ड्स,
एक ऊपर लगा लो और एक बॉन्ड नीचे लगा लो. On both sides we have hydrogen atoms, so carbon is directly attached with the Mg. तो बेटा that bond is polar bond जो कि पूरे Grignard reagent को reactive बना देता है. So that is the concept for Grignard reagent. Now we have this reaction. ये FSC में भी बहुत important है, A levels में भी बहुत important है. KOH का reaction अगर aqueous medium में किया जाए, so in this way जो OH होता है that will substitute the halogen and we will get the product. किस तरह से product मिलेगा? CH3 CH2, अगर Cl था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? OH. ठीक है, और we'll get KCl if we have aqueous medium. बेटा aqueous medium जब होएगा KOH है और you are using NaOH, तो in that case यहां पे हो रही है substitution. This is called a substitution product. This product is substitution product. Substitution product. If we will have KOH in the alcoholic medium, तो बेटा OH will get the hydrogen from the neighboring carbon, from the beta carbon, और इस तरह से यहां पे water eliminate हो जाता है, and we will get ये जो K होएगा that will get Cl, और the final product जो होएगा that would be alkene. So in this case we'll get ethene molecule along with the elimination of H2O or KCl. ठीक है, so बेटा alcoholic KOH की presence में यहां पे हो रही है elimination. So elimination reaction will take place if we are using alcoholic medium, and if we will use aqueous medium तो हो रही है substitution. ठीक है, so it means दोनों जगहों पे तो OH है. OH is acting like a nucleophile in this reaction, and OH is acting like it is getting the hydrogen. So बेटा यहाँ पे OH is acting like a base. Remember this thing कि जो elimination reaction है इसमें जो OH negative है that is acting like a base, and in this process जो OH है, OH is acting like a nucleophile. What is nucleophile? What is electrophile? What is substitution reaction? What is elimination reaction? अभी तो just मैंने यहाँ पे आपको basic concept दे दिए. We will discuss substitution reaction in the second part of this video, जो कि detail में होएगा इंशाल्लाह. Elimination और substitution को हम cover up करेंगे. So यहाँ पे OH is acting like a nucleophile. So now we have the other reaction, the fifth reaction, जहां पे यूज किया जा रहा है Na, सोडियम, in the presence of ether. ओके, यहां पे भी ether कंडीशन के तौर पे यूज हो रहा है. That is acting like a catalyst in this process. यहां पे भी यूज किया गया है ether. Why we are using dry ether over here? बेटा Grignard reagent जब बन रहा है मैग्नीशियम को यूज किया गया, और in that case we were using ड्राई ईथर, और यहां पे हमने जस्ट लिख दिया ईथर. ड्राई ईथर स्पेसिफाई नहीं किया गया. व्हाई इट इज नेसेसरी कि Grignard reagent में ड्राई ईथर यूज किया जाए? बिकॉज अगर ड्राई नहीं होएगा इट इज वेरी रिएक्टिव स्पीशी, ये वाटर के साथ ही इंटरेक्ट कर जाएगा. ठीक है, इट कैन रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल. जो Grignard reagent होएगा वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा. सो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड हो जाता है. Grignard reagent अपनी एक्चुअल फॉर्मेशन में नहीं रहेगा. So यहाँ पे है जी, this reaction is also known as Wurtz fitting reaction. That is also known as Wurtz fitting reaction. और जो products यहाँ पे बनते हैं, remember that thing बेटा, Wurtz fitting reaction में हमेशा you will get symmetrical alkanes. Product क्या बनेगा हमेशा? It always symmetrical alkane.
और जितने कार्बन यूज हो रहे हैं यू विल गेट द डबल एल्केन, डबल कार्बन वाला एल्केन आपको मिलेगा। इफ यू हैव इथाइल ग्रुप ओवर हियर तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट वुड बी ब्यूटेन, 4 कार्बन होंगे उसमें, सिमेट्रिकल एल्केन होएगा और विद द डबल कार्बन, डबल सी, डबल कार्बन होंगे उसमें। सो बेटा यहां पे वी आर यूजिंग इथाइल क्लोराइड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट मस्ट बी ब्यूटेन इन दिस केस, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। रिमेंबर दिस थिंग। अगर यहां पे होता मिथाइल क्लोराइड तो बेटा प्रोडक्ट क्या होता, इथेन, डबल हो जाएगा, ठीक है। इफ वी विल यूज प्रोपाइल ब्रोमाइड और Na ईथर के साथ रिएक्शन होता, सोडियम रिएक्ट करता इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपके पास आता हेक्सेन, एन हेक्सेन, सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। सो होप सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर अप हुए होंगे। एक रिएक्शन बेटा टेट्रा इथाइल लेड भी बनता है, दैट इज अनदर रिएक्शन जो अल्काइल हैलाइड के साथ बनाया जा सकता है। Na4Pb अगर यूज करोगे यू विल गेट टेट्रा इथाइल लेड। आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा, वी आर यूजिंग इथाइल क्लोराइड, C2H5 है आपके पास, दैट इज 4, और यहां पे आ जाएगा लेड, दैट इज नोन एज टेट्रा इथाइल लेड। दिस प्रोडक्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो कि एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है, दैट इज एंटी नॉकिंग एजेंट। लेकिन बेटा दिस इज हार्मफुल क्योंकि लेड ऑक्साइड जो होते हैं वो हैजार्डस होते हैं, लेड ऑक्साइड। तो इस तरह के कंपाउंड्स की जो कंबशन होती है, ऐसे कंपाउंड्स को बैन किया जा रहा होता है। तो दिस एंटी नॉकिंग एजेंट इज बैंड ड्यू टू द कंबशन प्रोसेस जो कि इसका प्रोडक्ट देती है लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन में। सो हैव अ लुक ओवर दिस क्वेश्चन नाउ। इन विच रिएक्शन अल्फा कार्बन ऑफ द प्रोडक्ट is having partial negative charge, has partial negative charge। बेटा Rx और KOH जब होएगा it will give you the alcohol, so यहां पे that is OH negative, so carbon is positive। Rx मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है and I have told you कि यहां पे जो कार्बन होता है that is न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। सो बेटा इस प्रोसेस में जो कार्बन प्रोड्यूस होएगा प्रोडक्ट में, दैट इज हैविंग द न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर, सो दैट इज न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज होएगा बिकॉज ग्रिग्नॉर रिएजेंट इससे बनना है। सो वी विल सेलेक्ट द ऑप्शन बी जो कि करेक्ट ऑप्शन होएगी। अगर सी और डी को भी देखते हो तो यहाँ पे आपके पास बनेगा बेटा दैट इज अल्केन, और यहाँ पे भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही बनेगा बिकॉज वी आर यूजिंग NH3। NH3 एक हाइड्रोजन के साथ Cl के साथ रिप्लेस हो जाएगा एंड इट विल गिव यू RNH2। तो बेटा सेम विल मूव विद द बी ऑप्शन। सो अभी इसी के सेकंड बॉट की तरफ मूव करते हैं और फर्दर क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं और इन्हीं रिएक्शन की एक्सटेंशन को देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस और फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ और यहाँ पे कुछ SN1 और SN2 या बीटा एलिमिनेशन के प्रोसेस को भी फर्दर प्रोसीड करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स हैव अ लुक ओवर हियर के न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं और व्हाट इज लीविंग ग्रुप, और इनके रिलेशंस को डिस्कस करते हुए वी विल कवर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बिकॉज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लिखा तो है बट एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की टाइप्स को हमने डिस्कस नहीं किया, दैट इज SN1 और SN2। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बेसिक कॉन्सेप्ट कि न्यूक्लियोफाइल का वर्ड जो यूज हुआ है, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल और कौन से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं और कौन से वीक न्यूक्लियोफाइल हैं और इनके रिलेशनशिप हम किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं लिविंग ग्रुप के साथ। सो बेटा न्यूक्लियोफाइल ऑल्दो वी नो कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, दैट इज न्यूक्लियस लविंग स्पीशी। बेटा इसके पास या तो लॉन पेयर होना चाहिए और या तो ये दैट इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज,
ठीक है, मोस्टली जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होंगे, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी होंगी बेटा, उनके पास या तो लॉन पेयर होता है और या तो दे विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज, यानी कि मोस्टली दे आर एनाइंस। सो एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें, स्ट्रॉन्ग कुछ न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, कुछ वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो अगर OH की बात की जाए बेटा, दैट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कुछ एग्जांपल्स यहां पे मेंशन कर देता हूं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे बेटा? फॉर एग्जांपल वी हैव OH नेगेटिव, जो यहां पे रिएक्शन में मैंने यूज किया, OH नेगेटिव, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली अगर आपके पास है जी RO नेगेटिव अल्कोहल, दैट इज एथोक्साइड आइन, तो बेटा दिस इज अनदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। रिमेंबर वन पॉइंट, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे दैट इज वीक लिविंग ग्रुप। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर लिविंग ग्रुप क्या होते हैं? सो अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो आई एम टेलिंग यू कि दे आर वीक लिविंग ग्रुप्स। Weak. If they are strong nucleophile, they are weak living groups. So now the question is कि what is living group? बेटा living group when nucleophile attack on a particular molecule जो कि substrate कहलाता है, for example alkyl halide पे जब nucleophile attack करता है, so the part of that alkyl halide जो कि halogen होता है, in alkyl halide के केस में जो Cl है, that leaves that alkyl halide, तो बेटा this is called as living group in this case। ठीक है, living group जो मॉलिक्यूल्स को छोड़ के जा रहा होता है, ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑन अ पर्टिकुलर कार्बन, अल्फा कार्बन पे कर सकता है। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक लिविंग ग्रुप्स होंगे। और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल की बात की जाए, उनकी कौन सी एग्जांपल हो सकती है वीक न्यूक्लियोफाइल? फॉर एग्जांपल यू हैव हैलोजेंस, Cl नेगेटिव है आपके पास, you have Br नेगेटिव, you have I नेगेटिव, you have HSO4 नेगेटिव। तो बेटा these are weak nucleophiles। बेटा अगर ये weak nucleophile है तो it means they must be strong living groups, strong living groups। Got it? तो ये एक रिलेशन याद रखिएगा। वी विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस थिंग जो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया। अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा कुछ की पॉइंट्स फर्दर बता रहा हूं कि जितने भी एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो एसिड स्ट्रॉन्ग होंगे, दे विल हैव गुड लिविंग ग्रुप्स। उनके जो एनाइंस होते हैं दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे कहा I नेगेटिव इज अ गुड लिविंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, वी नो दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। सो बेटा उधर से ही आपको मिल रहा है HSO4 नेगेटिव, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। सिमिलरली if you have HI, that is a good living group, तो बेटा यहीं से आपको मिल रहा है I नेगेटिव, it is a strong acid। strong acid का जो एनाइन होएगा that is good living group, remember this point। और अगर आपके पास weak acid है, if you have a weak acid, तो बेटा जो भी weak acids होंगे they would have poor living groups in it, poor living group होएगा उनमें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिलेशनशिप पूछ लिया जाता है, you have HF, you have HCl, you have HBr, you have HI, बेटा remember one point कि
न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फॉर एनाइंस। हैलोजेंस में F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, वी हैव Br नेगेटिव, वी हैव I नेगेटिव। तो जो नीचे आते जाएंगे साइज इंक्रीज करेगा और न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ता जाएगा, यानी कि I नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होएगी, ठीक है। और ये एसिड भी स्ट्रांग है, और अगर एसिड स्ट्रांग है तो इसका लिविंग ग्रुप भी अच्छा है। सो I नेगेटिव के लिए ये पॉइंट याद रखिएगा, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है। ये पॉइंट फर्दर इसके लिए याद रखें, क्योंकि यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल तो लिखे हुए हैं, Cl नेगेटिव भी है, Br नेगेटिव भी है, I नेगेटिव भी है, लेकिन इनमें से कौन सा ज्यादा है। सो फॉर दैट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइज। जो नीचे आते जा रहे हैं साइज बढ़ता जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल अच्छा होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता जा रहा है, दैट इज I नेगेटिव, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो कि अभी तक हमने यहाँ पे कवर किया। वाई इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को अब डिस्कस करना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, वी हैव SN1 एंड SN2। पहले हम डिस्कस करते हैं SN2 रिएक्शंस को। और SN2 reactions क्या होंगे? This 2 is actually giving you the information about the order of the reaction. This is second order reaction. Order of reaction क्या है इसका? That is 2. Why this is 2? Because 2 molecules are used in the rate equation. ठीक है? That is bimolecular reaction. और बेटा जितने भी SN2 रिएक्शंस होंगे वो ज़्यादातर इट इज़ ईजियर फॉर द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो कि SN2 रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉर एग्जांपल यू हैव कार्बन, इट हैज़ 3 हाइड्रोजन्स, और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है फॉर एग्जांपल दैट इज Br। इन दिस केस वी हैव अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड एक न्यूक्लियोफाइल हम यूज कर रहे हैं दैट इज OH नेगेटिव। बेटा OH नेगेटिव विल अटैक ओवर दिस कार्बन, और ये कार्बन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा फ्रॉम कार्बन और Br का ये जो बॉन्ड होएगा दैट इज गोइंग टू ब्रेक। इन दिस केस OH जब अटैक कर रहा है तो इट इज मेकिंग अ बॉन्ड विद दिस कार्बन, और कार्बन के यहां पे 3 हाइड्रोजन्स हैं, एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू दिस स्टेट जिसको हम कहते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इनिशियली दिस कार्बन इज हैविंग हाउ मेनी बॉन्ड्स? 4। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? दैट वाज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब भी कार्बन के 4 बॉन्ड्स होंगे दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट इन दिस केस कार्बन इज मेकिंग 3 बॉन्ड्स। सो बेटा यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की दैट इज sp2। सो आगे ये बेटा Br नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, लीव कर जाएगा, एंड वी विल गेट द अल्कोहल मॉलिक्यूल। OH is attached with this carbon and it is having 3 hydrogens with this. तो बेटा again carbon has made its 4 bonds, तो बेटा sp3 hybridization वापस आ गई। So sp3 से conversion हुई sp2 में, sp2 से again it has regained sp3 hybridization. So ये hybridization का concept भी याद रखना है। So SN2 reaction में hybridization किस तरह से change होती है? sp3 से sp2 में, then sp2 से sp3 में। This is the process जो hybridization में भी आपने याद रखना है। So बेटा SN2 reaction इसको क्यों कहा जा रहा? Because it is a single step reaction. It has a single step mechanism. SN2 में single step reaction हुआ है। It has a single step mechanism.
In a similar step, the bond breakage and bond formation happening. Nucleophile is attacking on the carbon and leaving group is leaving the carbon. So यानी कि bond breakage and bond formation both are taking place at the same time in SN2 substitution. Bond, it is important point to note, bond formation and bond breakage happens at the same time. तो बेटा कितने एक्चुअली यहां पे मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन? रिएक्टेंट्स कौन कौन से थे? OH नेगेटिव, SN2 रिएक्शन में अगर रेट इक्वेशन इसकी लिखी जाती है तो बेटा रेट इक्वेशन इज इक्वल्स टू K, that is having a nucleophile that is OH negative in this case, and we have alkyl halide that is RX, RBr, CH3Br है हमारे पास. So बेटा रेट इक्वेशन आपके पास ये आ गई. So now the question is, in SN2 reactions, the rate of reaction depends upon nucleophile, alkyl halide, A and B both, none of these. तो बेटा हम सेलेक्ट करेंगे A and B both को. So इस तरह से क्वेश्चन SN2 का पूछा जा सकता है. Okay, let me rephrase that question. In SN2 reaction, we have this rate equation. If I will take RBr, that is alkyl bromide, in excess amount, तो बेटा what is the order of that reaction? बेटा order of reaction के लिए point याद रखें, जब भी कोई substance, although it is mentioned in the rate equation, लेकिन अगर excess amount में होएगा, we have to neglect that thing. Order of reaction की वीडियो को आप देख सकते हो अगर order of reaction का concept weak है. So we have uploaded that topic as well. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से ही टॉपिक होएगा. अगर एक्सेस कोई भी सब्सटेंस होता है तो हमने उसको नेग्लेक्ट कर देना होता है. रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट एक्सेस रिएजेंट. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी उस पर डिपेंड नहीं करेगा. रिमेंबर दैट पॉइंट. ठीक है. सो बेटा दीज आर द पॉइंट्स फॉर SN2. और यहां पे अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है which type of solvent is favorable for SN2 reaction, that is the MCQ question. SN2 reaction में अगर कोई आपने solvent यूज करना होता है, it should be non-polar solvent. ठीक है. So SN2 में कौन सा solvent यूज कर सकते हो? Non-polar solvent is favorable for SN2 reactions. So beta now have a look over these questions. Which one is not a nucleophile? Nucleophile is nucleus loving species जिसपे या तो नेगेटिव चार्ज होएगा या तो उसके पास लॉन पेयर्स होंगे. बेटा H2O ऑक्सीजन इज हैविंग 2 लॉन पेयर्स. ठीक है जी. सो ये तो न्यूक्लियोफाइल है. H2S सल्फर बिलोंग्स फ्रॉम द सेम ग्रुप, इसके पास भी 2 लॉन पेयर्स हैं. BF3 and NH2 negative. You can see NH2 negative over here. Negative charge है, so it means it is a nucleophile. So we are left with BF3. Although we know कि BF3 में boron is deficient for the electrons. उसके पास deficiency है. Electron की deficiency की वजह से it is electron acceptor. Electron loving species है. That is electrophile. तो बेटा electrophile क्या होता है? That attracts towards the electrons. ठीक है. Electron loving species is electrophile and nucleus loving species is nucleophile. So बेटा BF3 electrons deficient group है, deficient molecule है, so it will attract towards the electrons, so that's why it is electrophile, not a nucleophile. This is MDCAT question. MDCAT के past papers में से ही ये question use किया गया है. So question number 2 पे move करते हैं.
Which one is a strong nucleophile? बेटा strong nucleophile, F negative, Cl negative, Br negative and I negative. I told you कि अगर हैलोजन में से यूज किया जाता है कॉन्सेप्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, साइज इंक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है. सो बेटा I is at the lower side जो कि greater in size होता है. So that's why it is a stronger nucleophile. All right. So बेटा हैलोजेंस के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था. हैलोजेंस ग्रुप में से हैलाइड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता रहता है उनमें. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं. विच वन इज गुड लिविंग ग्रुप? लिविंग ग्रुप कौन सा इनमें से अच्छा है? बेटा अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो OH नेगेटिव कहां से आया है? दैट इज फ्रॉम H2O. अब गुड लिविंग ग्रुप का मतलब है कि ये अच्छा एसिड होना चाहिए. गुड लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, अच्छा एसिड होना चाहिए. H2O आपके पास आ गया. HSO4 नेगेटिव कम्स फ्रॉम H2SO4. ऑल्दो वी नो कि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. R नेगेटिव है, सो इट मीन्स कि RH है ये, जो कि एल्केन होते हैं. और एल्केन की कोई एसिडिक नेचर आपने अभी तक डिस्कस नहीं की कहीं पे. RO नेगेटिव, बेटा RO नेगेटिव इट मीन्स वी हैव एथॉक्साइड आइन. अल्कोहल में से अगर हमारे पास ये R यूज किया जा रहा है तो इट मीन्स अल्कोक्साइड आइन है, ये आपके पास अल्कोहल का आइन है. सो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखें तो बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसकी है? HSO4 नेगेटिव की. सो बेटा गुड लिविंग ग्रुप भी वही होएगा. सो वी विल मूव विद द बी ऑप्शन. रूल ये यूज करोगे, ठीक है. विच इज पुअर लिविंग ग्रुप? बेटा पुअर लिविंग ग्रुप कौन से होंगे? जो वीक एसिड है. RCOO नेगेटिव, इट मीन्स कि ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH. This is phenoxide ion. That means this is phenol OH attached है. This is OH negative. It means it comes from H2O. This is RO negative. It means alcohol में से है. तो बेटा this is actually the trend of acidic strength. सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स की. फिर फिनोल्स आते हैं जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं. देन वी हैव वाटर मॉलिक्यूल जो कि एसिडिक इन नेचर होता है. और एट द एंड वी हैव अल्कोहल मॉलिक्यूल्स जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं. तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ एसिड्स. ठीक हो क्या जी? सो विच इज पुअर लिविंग ग्रुप इन दिस केस? जो सबसे ज्यादा वीक एसिड है, सबसे ज्यादा वीक एसिड ROH है. और उसी का जो एनाइन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, वी हैव टू सेलेक्ट दैट ऑप्शन. सो इट मींस विल मूव विद द डी ऑप्शन. दैट इज पुअर लिविंग ग्रुप. सो नाउ हैव अ लुक ओवर दिस क्वेश्चन. के वी हैव इथाइल ब्रोमाइड KOH अल्कोहलिक यूज किया जा रहा है and we are getting this molecule that is having double hydrogen than the carbon. So it means that is alkene molecule and HBr यहाँ पे produce हुआ है along with that. This reaction is addition reaction, this is substitution reaction or this is elimination reaction. And we can see कि जब भी KOH alcoholic medium में use होएगा बेटा that type of reaction is called as elimination reaction. So यहाँ पे एलिमिनेशन हुई है और एलिमिनेशन के रिजल्ट में वी आर गेटिंग अल्कीन, जो कि हम यहाँ पे इस रिएक्शन में पढ़ चुके हैं. ठीक है. नाउ हैव अ लुक ओवर द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस. C2H5Br है आपके पास, दैट इज अगेन इथाइल ब्रोमाइड. KOH अल्कोहलिक यूज किया तो वी आर गेटिंग अल्कीन. यहां पे बन जाएगा बेटा इथीन. इथीन का H2 के साथ रिएक्शन हुआ है. इट मींस आई एम डूइंग हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन ब्रेक करेगा डबल बॉन्ड को इथीन के और इसको कन्वर्ट कर देगा इथेन में. वी विल गेट दीज प्रोडक्ट्स
इथीन एंड इथेन, ए और बी यानी कि ये प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। ऑल राइट, सो बेटा अगर यहाँ पे हमने SN2 रिएक्शंस को डिस्कस किया है, सो लेट मी यूज अनदर रिएक्शन ओवर हियर, और आपने उसका बताना है कि प्रोडक्ट क्या होएगा। इफ आई एम यूजिंग CH3 CH2 Br and it is reacting with NH3, तो बेटा आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा? एंड वी हैव टू यूज अल्कोहल विद दिस। अल्कोहलिक मीडियम यूज करना होता है। जब भी बेटा ज़्यादातर रिएक्शन जो अल्काइल हैलाइड्स के हैं ना, उनमें अल्कोहल को यूज़ किया जा रहा होता है। जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करने होते हैं, अल्कोहलिक मीडियम से एलिमिनेशन आपके पास मिल जाती है, और अल्कोहलिक NH3 का रिएक्शन यहाँ पे अगर करवाएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा? दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो NH3 में से NH2 will act like a nucleophile, और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटा? नेगेटिव को रिप्लेस कर देता है, ठीक है? इसकी जगह पे ये खुद चला जाएगा। नॉट NH3 बट NH2। NH2 इज a nucleophile over here, so प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? CH3 CH2 and NH2 प्लस HBr, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हो गई है इसकी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। सो सब्स्टिट्यूशन में बेटा नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करेगा नेगेटिव चीज़ को, ठीक है, और पॉजिटिव चीज़ पॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट करेगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। सो अगर आपसे पूछा जाता है अल्काइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो बेटा इसमें जस्ट Cl है जो रिप्लेस होता है। सो इट मींस Cl इज नेगेटिव, तो नेगेटिव सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करते हैं, या एलिमिनेशन रिएक्शन ये शो करते हैं। ऑल राइट, सो नाउ आई एम आस्किंग अनदर क्वेश्चन, और उसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा। इफ वी हैव मिथाइल ब्रोमाइड और उसका रिएक्शन करवाते हैं हम सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, सो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? दोबारा क्वेश्चन सुने। मिथाइल ब्रोमाइड है, इट इज रिएक्टिंग विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, सो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास? प्रोडक्ट का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है? सो वी कवर्ड SN2 रिएक्शन। SN2 के बाद बेटा SN1 रिएक्शन होता है, दैट इज नोन एज यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है जी। यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस के केस में क्या होएगा? व्हाट विल हैपन? SN1 only one molecule is used in the rate equation, that is unimolecular reaction, यानी कि इसका order of reaction क्या है? That is 1. It is two-step reaction, two different steps में ये proceed होता है, two steps होते हैं। पहले बॉन्ड ब्रेकेज होती है एंड देन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। बट इन SN2 व्हाट हैपेंड? बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकेज वाज हैपनिंग एट द सेम टाइम, बट इन SN1 रिएक्शन बॉन्ड ब्रेकेज कम्स फर्स्ट और उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, और ये ज्यादातर सूटेबल होते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स के लिए, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स विल परफॉर्म SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन कौन शो करेंगे? टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स आर दोज इन व्हिच हैलोजन इज अटैच्ड विद द कार्बन दैट हैज फर्दर 3 बॉन्ड्स विद द कार्बन्स। सो बेटा एक यहाँ पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिखता हूं, दैट इज X, it is attached with the carbon that has 3CH3 सो बेटा सबसे पहले हम इसको आयनाइज करते हैं और ये अपने आइंस में कन्वर्ट होता है, तो हमारे पास बनता है कार्बोकेटाइन आइन CH3 CH3 and CH3, that is called as carbocation ion plus X negative। बेटा ये रिएक्शन होता है स्लो,
स्लो रिएक्शन है, इट मींस दैट इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप एज वेल। तो इस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट्स आपको नजर आ रहे हैं? देयर इज ओनली वन रिएक्शन, ओनली वन रिएक्टेंट। सो बेटा दैट्स वाई इसकी रेट इक्वेशन में भी एक ही सब्सटेंस होता है, दैट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। सो SN1 रिएक्शन only depends upon the tertiary alkyl halide because it takes place in two different steps. और जो first step है that is the slower one, और slower step में there is only one reactant used. So beta that reactant is used in the rate equation as well. Rate equation इसकी क्या बनेगी बेटा? Rate equals to alkyl halides, कांस्टेंट यूज करेंगे, अल्काइल हैलाइड्स आ जाएगा और ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होएगा। देयर इज नथिंग एल्स इन दिस रेट इक्वेशन, कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे यूज नहीं होएगा। इट मींस SN1 रिएक्शंस आर इंडिपेंडेंट टू द न्यूक्लियोफाइल्स, और SN2 रिएक्शंस का जो ऑर्डर होता है, जो रेट होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियोफाइल। बट SN1 रिएक्शंस का जो ऑर्डर होएगा, जो रेट होएगा, दैट इज इंडिपेंडेंट और द न्यूक्लियोफाइल। एक तो ये चीज होगी हमारे पास। और यहां पे अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन को ऑब्जर्व करूं तो बेटा sp3 से इट इज कन्वर्टिंग इनटू sp2 में, और फिर नेक्स्ट स्टेप में बेटा इस पे अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। एंड रिमेंबर जो टर्शरी हमारे पास कार्बोकेटाइंस होते हैं ये स्टेबल ज्यादा होते हैं, अब इन पे अटैक होएगा और न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम आइदर वे। जो भी न्यूक्लियोफाइल होएगा, फॉर एग्जांपल वी हैव OH नेगेटिव, ये इस तरफ से भी अटैक कर सकता है, एंड OH कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड एज वेल। तो दोनों साइड्स इसके लिए ओपन है। अगर ये पिछली साइड से अटैक करता है, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एंड इफ इट अटैक्स फ्रॉम दिस साइड, सो दैट इज कॉल्ड एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो 50% चांसेस है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के और 50% चांसेस हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के। बट इन SN2 व्हाट इज हैपनिंग? न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप के हमेशा ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, और it will give you the product that is 100% inversion। ठीक है, लेकिन जो यहां पे प्रोडक्ट होएगा, although we'll get tertiary alcohol, वो 50% रिटेंशन भी हो सकती है और 50% इन्वर्जन के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, सो SN1 रिएक्शन, होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर अप एलिमिनेशन रिएक्शंस, और फर्दर हम इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, अल्काइल हैलाइड्स को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।